Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today I will start a new topic from real analysis sequences. See, I will introduce you to some well-known definitions. First, I would like to give you a brief theory about the terms which I will use in the next video for solving the question. See, sequences. What is a sequence? A sequence is a function whose domain is a set of natural numbers n and range a subset of real numbers r is called a real sequence. See, here we will use real sequence, so I am talking about a real sequence. If instead of the real sequence, if you take any set S and the function defined from a domain of natural number to the set S, then we call it a sequence, simply sequence. But if the range is a subset of real numbers r, then it is called a real sequence. Now see, a function is a rule which assigns each element of the domain to a unique element of the codomain. We can say it as a rule which assigns each element of the natural number n to a unique element or to a subset of the real numbers r, which we call a range. This is the definition of a sequence. Now what is a range? Range is the set of all distinct terms of a sequence is called its range. डिस्टिंक्ट टर्म्स का मतलब क्या है कि जितने भी सीक्वेंस कैन कंटेन इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस कैन बी इन्फानाइट बट अ रेंज और बेसिकली अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इन्फानाइट. फॉर एग्जाम्पल, I write the sequence -1 to the power n. See this sequence, this is the way to represent a sequence. Okay, this bracket. How we will write it? As 1 -1 1 -1 1, it goes on like this. It is a sequence. See, when we talk about the range, the set of all distinct terms of a sequence is called its range. And what is the range for this sequence? Only 1 and -1 are two distinct terms, means range contains only two terms. It is infinite, but the range is finite. It's not necessary that if the sequence is infinite, then the range will also be infinite. But in some examples, we can see like -1 to the power n by n. In this case, the range is infinite. This is the sequence and this is the range. Now, some important terms related to sequence is one of the important terms is limit point. Limit point क्या होता है? Limit point and one is limit. Limit point और limit दोनों डिफरेंट चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं आपको लिमिट पॉइंट बताती हूँ क्या होता है. लिमिट पॉइंट किसे बोलते हैं? इफ़ एन इज अ सीक्वेंस एंड एल बिलोंग्स टू आर, then we say L the limit point of the sequence if every neighborhood of L contains infinite numbers of the sequence an. Infinite members को वो contain करेगा तभी वो limit point कहलाएगा. और in mathematical terms you can write it as L is limit point of sequence an if and only for any epsilon greater than 0. Epsilon is a very small number. An belongs to L minus epsilon, L plus epsilon for infinite values of n. लिमिट पॉइंट ये हो गया लिमिट पॉइंट. एंड उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट अ बाउंडेड सीक्वेंस. द टर्म बाउंडेड, इससे हमें क्या पता चल रहा है? सीक्वेंस बाउंडेड है, मतलब कि कुछ हमें कोई एक अपर बाउंड मिला. सपोज करिए एफ एन कोई सीक्वेंस है, तो हमें कोई एक अपर बाउंड मिलेगा और कोई एक लोअर बाउंड मिलेगा. ठीक है, तो हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड बोलेंगे. Bounded above and bounded below. If it is greater than k, then we say this sequence bounded below. And if fn less than k means it is bounded above. See, a sequence can be bounded above and not bounded below, and sequence can be bounded below and not bounded above. One example like 2 to the power n. See, 2 to the power n is greater than equal to 2 and belongs to natural number. It is bounded below but not bounded above. We can't find a number case as that 2 to the power n is less than equal to
k for any natural. This we can't find, so we can say is that bounded below but not bounded above. ओके एंड सीक्वेंस में इम्पॉर्टेंट मेन जो कंसेप्ट है वो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी से रिलेटेड है. कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, एंड वन मोर टाइप ऑफ सीक्वेंस इज ऑक्सीलेटरी टाइप ऑफ सीक्वेंस. ठीक है, अब आप देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के बाद आपको मैं बताती हूँ. लाइक पहला एक थ्योरम है. अब सीक्वेंस इज बाउंडेड if and only if its range is bounded. अगर रेंज बाउंडेड है तो वी कैन कॉल द सीक्वेंस अ बाउंडेड सीक्वेंस, और अ सीक्वेंस इफ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड वी कैन से इट्स रेंज इज बाउंडेड if and only if conditions satisfied. Now see, I will tell you some examples of sequences like 1 by n. These are the well known sequences. इससे हम क्वेश्चंस पे भी बहुत यूज़ करते हैं फॉर काउंटर एग्जाम्पल्स और फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. इफ़ यू हैव टू अज्यूम सम सीक्वेंस देन वी यूज़ दिस वेल नोन सीक्वेंसेज 1 by n square minus 1 to the power n by n. These are some of the sequences. And one more definition, monotonic increasing or monotonic decreasing. It's also a very important term. Monotonic increasing means the sequence is monotonic. वर्ड से आप क्या समझते हैं? मोनोटोनिक मतलब कि वो एक पैटर्न में है, जैसे कि या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो डिक्रीज़ करेगा. अगर ऐसा कुछ है तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया. अगर ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन है तो दिस इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एन प्लस वन इट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. मोनोटोनिक वर्ड भी यूज़ होता है एग्ज़ाम में, बहुत बार क्वेश्चंस में गिवन होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, और उससे सीक्वेंसेस भी हम बना सकते हैं. एक और चीज़ होती है कि स्ट्रिक्टली अगर ये है तो वो इंक्रीजिंग हुआ, एंड ये है तो वो डिक्रीजिंग हुआ. ए एन लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन मतलब कि हर एक बाद वाला टर्म उससे बड़ा है. मीन्स ए वन ए टू, तो ए टू इज़ ग्रेटर देन ए वन, ए थ्री इज़ ग्रेटर देन ए टू, मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एंड दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. Okay, clear? Now come to the limit, definition of limit. Let n be a sequence and L belongs to R. Then if for any epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number depending on epsilon such that mod of n minus L less than epsilon for whenever n greater than equal to m. This is the definition of limit, or we can say limit n tends to infinity a n is equal to n. Okay, यहाँ तक क्लियर है. नाउ विल प्रोसीड टू द कन्वर्जेंट सीक्वेंस. कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जेंस, और उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स है विच यू नीड टू नो फॉर योर एग्जाम पर्पस. और पहले आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझिए क्या होता है. कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस की लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है, देन वी कॉल दैट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस की लिमिट अगर है, अगर कोई भी सीक्वेंस एफ एन ही है सपोज कीजिए, एंड इट टेंड्स टू लिमिट एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी,
then this sequence is a convergent sequence. ओके, कन्वर्जेंट मीन्स सिंपल वर्ड भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वर्जन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्जेंट मीन्स वो डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस भी होते हैं, अगर वो कन्वर्ज नहीं करता है तो डाइवर्ज करेगा या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे। और एक सीक्वेंस होता है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस वैसे सीक्वेंस होते हैं जो कि कन्वर्ज भी नहीं करते किसी फाइनाइट वैल्यू पे और डाइवर्ज भी नहीं करते इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे। सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंसेस। और अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है विच डज नॉट कन्वर्ज, then we call that sequence as oscillate finitely. Example of such sequence -1 to the power n. और एक चीज़ मैं नहीं बताई, मिस हो गया, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सीक्वेंस से सब सीक्वेंस कैसे हम लोग निकालते हैं। सी अगर कोई सीक्वेंस है एफ एन कोई सीक्वेंस है और उसका कोई एन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स n1 ग्रेटर देन n2 लाइक दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। उस केस में जो सब सीक्वेंस होगा हमारा वो कैसे डिफाइन होगा, एफ एन के इज द सब सीक्वेंस कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ एफ एन। लाइक एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई सीक्वेंस हमारा ए एन कोई सीक्वेंस है तो ए टू एन उसके सारे इवन टर्म्स सब सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, n2+1 भी उसका सब सीक्वेंस फॉर्म करेगा लाइक दिस। अगर ये कोई सीक्वेंस है ऑक्सीलेट फाइनाइटली, इट ऑक्सीलेट फाइनाइटली, अगर ये कोई सीक्वेंस है तो इसका सब सीक्वेंस बना सकते हैं। बस ये ऑर्डर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, then it should be in order, it should maintain the order, then we call it as a subsequence। और मैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी बताती हूँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। सब सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू सम लिमिट, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एल से, then all its subsequences converges to the same limit। मीन्स अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट एल पे तो उसके जितने भी सब सीक्वेंसेज होंगे वो सारे उसी सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ से एक और चीज़ हम बोल क्या सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस को हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है तो वी कैन शो दैट एनी टू ऑफ इट्स सब सीक्वेंसेज कन्वर्जेस टू टू डिफरेंट लिमिट्स। ओके, तो उस चीज़ से भी हम कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हैं। और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के बहुत सारे टेस्ट हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, डीएलएमबर्ट्स वगैरह सीरीज़ में आएंगे, सीरीज़ में भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक किया जाता है। तो फर्स्ट मैं आपको सीक्वेंस से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, पहले आप ये सारे वेल नोन टर्म्स के बारे में देखिए कि हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। और तो इसमें कुछ है नहीं, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में मैंने बताई था अभी, -1 to the power n ऑक्सीलेट फाइनाइटली। और अगर कोई सीक्वेंस ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली का डेफिनेशन क्या होगा कि कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है विच डज नॉट डाइवर्ज we call that sequence oscillate infinitely. For example, n-1 to the power n, it is a unbounded sequence and it is not divergent, it oscillates infinitely। तो ये आपने देखा कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस।
तो हम क्या चेक कर सकते हैं कि अगर कोई -1n ये सीक्वेंस लिए थे, इसका 2 सब सीक्वेंसेस बनेगा। तो ये आप देखिए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, हम इस थ्योरम से कैसे चेक करेंगे। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको देखते हैं, इसकी लिमिट आएगी 1, और अगर -1 + 1 के लिए करेंगे तो -1। इसका मतलब है कि हमें इसके 2 डिफरेंट लिमिट्स मिल गए। तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, बट ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। इट इज़ ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस एंड इट ऑक्सीलेट्स फाइनाइटली। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में मैं कुछ और थ्योरी डिस्कस करूँगी, उसके बाद वी विल go to the series and then we will solve some questions. And thanks for watching my video. If you like, please do like and subscribe to my channel. And lastly, I would like to thank you, my teachers, for the guidance, for the support, for the motivation. Because of them only I am here today in front of you, and I am very grateful to them. एंड मैं कुछ भी समझा रही हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ भी मिस हो रहा है या फिर मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।